very happy with that portion of the order. But otherwise, जो rabid dogs हैं, aggressive dogs हैं, according to them, they will take to the ponds or animal shelters. Other dogs will be released. No? Release. Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I lovers? think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी, and people will not be allowed to give food on the streets. Some penalty has been announced. So that is very important also कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं. तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर. Of the dogs, which it hasn't. They're saying that they will sterilize them first and then. And yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation, a big no-no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very, very important, which I have been, harping upon since 2016. जब से मैंने कुछ जुर्माना भी लगाया जो लोग देखिए, जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं, उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, maybe as interveners or whatever, and that will be utilized to 25,000 to 2 lakhs. So that amount will be utilized for all the constructing the shelter houses in case we are for the aggressive and for the rabid dogs. So and no individual, no NGO will be in case they object or obstruct, not object but obstruct in this kind of where people are the MCD is trying to do their jobs by sterilizing and all that. They have to be dealt with severely. So that is also another point that they have made. And so ultimately what they have said is the effective implementation of the ABC rules, which I'm so happy with, because that was not happening for years now, and that is the reason I had filed RTI in 2016, and I'm struggling since 2016. High Court में गया, High Court में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आई हूँ मैं, अब issue notice हो गया. So we are hoping for a good order in that also. So I think this is the only solution to this whole issue of the community animals, community dogs. बड़ा कंसर्न था कि MCD आके पिकअप करने लगेगी डॉग्स को, उसको लेकर क्या आज कोर्ट ने कहा, क्या वो खतरा है अभी भी बना हुआ, क्या होगा? यही थोड़ा सा हमको है, अभी भी खतरा है, क्योंकि अथॉरिटीज आपको पता है किस तरह से काम करती हैं. तो वी हैव टू बी विजिलेंट कि थोड़ा सा कि जो अग्रेसिव डॉग्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. So they will just pick up at random, all the dogs. But they have to adhere to ABC rules. Yes, so they have to. Yes, they have to adhere to They have to follow the ABC rules. That was there, so I'm sorry. The 8 weeks time of rounding up of stray dogs, is that still there? No, that is gone. That is finished now. That is finished. Now it will be listed for abeyance. So it is kept in abeyance. That part of the order. So now the matter will be listed after 8 weeks, I think. Yes, 8 weeks. Thank you. So congratulations to all of us. Thank you so much. Anything you wanted to say to the अब क्या कैसा फीलिंग हो रही है आपको? आप पहली बात तो ये कि जो डॉग्स को उन्होंने कैच करा है, क्या उनको पता है कि वहाँ से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे, वो कैसे रिलोकेट करेंगे उनको, वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है. रात में कोई MCD की वैन्स नहीं आती है कैच करने, इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है. अब द पॉइंट इज कि ठीक है वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है. जहाँ पर भी जो डॉग्स जाएगा, कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयरटेकर्स
कैरेक्टर्स है वो उन्हें पहचान लें और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है। बट ठीक है, अब जो ऑर्डर निकला है तो क्या ही कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिलीफ है कि हाँ अब बच्चे नहीं उठेंगे। फीडिंग के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया हुआ, तो हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, इसके लिए डेडिकेटेड प्लेस होगा। हमें डेडिकेटेड प्लेस दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई आके ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इन्हें यहाँ क्यों खिला रहे हो, आप यहाँ पे गंद क्यों मचा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। केयर टेकर्स को मार रहे हैं, उनके साथ फिजिकल हो रहे हैं, डॉगीज को मार रहे हैं। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन होके आए क्योंकि एक केयर टेकर को हरास करा गया है जो तिलक नगर में थे। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। ये कोई सेंस नहीं बनती है। लोग ओपनली, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोग ओपनली हमें धमकी दे रहे हैं कि हम कुत्तों को जहर दे देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो दैट्स नॉट द पॉइंट ना। आप हमें भी तो फिर दो ना, इतनी प्रोटेक्शन दो हमें भी। हमारे लिए कोई ऐसा रूल निकालो ना कि हम जाके बोल सके कि हमको ऐसे धमकियां आ रही है तो हमारे लिए कोई एक्शन लो। एनिमल क्रूरल्टी पे 50 रुपए का फाइन है। आप खुद सोच लो कि क्या ही अहमियत है। तो फिर ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, बेहद अहम खबर है क्योंकि उसनूं लैके पिछले दिनों तो लगातार चर्चा चल रही सी। तां होर जिहड़े सूबे ने उन्हां नूं भी नोटिस भेजिया जाएगा। शैल्टर होम भेजे गए कुत्ते छड्डे जाणगे। तां खुलेआम खाना खुआउण ते हालांकि पाबंदी होएगी और सुप्रीम कोर्ट दा कहना कि असीं पूरे देश नूं ध्यान च रखदे हुए यह फैसला लिया है। इसको हमने हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो दो ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा। क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है एज एन, मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ।